Hello students, now come to the MCQ part from the ecosystem chapter. We are going to discuss in part 2 MCQ. We are going to do some good level of questions here. Let us see the first question in this session. First question is, पहला question है देखिए, the rate of formation of new organic matter, the rate of formation of organic matter by photosynthesis is called. So options are, first one primary productivity, एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ओके. देन तीसरा ऑप्शन है जीपीपी एंड एनपीपी. So how to do this question? Very confusing. That's why I am keeping this question for discussion. Very confusing are there the definition of primary productivity and the definition of GPP. बहुत ज्यादा क्लोज डेफिनेशन है और ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज कॉल्ड. रेट अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोला जा रहा है, दैट टाइम वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द आंसर जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, इसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलना पड़ेगा. ठीक है. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन कैसा आएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस. द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल बायोमास in plants synthesized by photosynthesis, that is called primary productivity. Okay, but here GPP क्या है? GPP क्या होगा? देखिए, the rate of formation of biomass in plant by photosynthesis, that is GPP. Okay, now let's move to next question. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, द बायोमास सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स, द बायोमास सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स like in herbivores referred as, options are primary productivity, secondary productivity, GPP, NPP. इस बार जो क्वेश्चन है, जो एनिमल में फूड तैयार होता है, द एनिमल में जो फूड तैयार होगा, फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास कुछ 100 kg है, एंड हियर डियर इज देयर एंड दिस डियर इज अराउंड सम 25 kg. And this deer is every day is feeding upon grass and gaining weight. Deer is getting weight because it is feeding upon the grass, right? तो ये जो deer के अंदर जो biomass है 25 किलोग्राम, the biomass available in animals, the biomass synthesized in animals, like in herbivores referred as. Animals के अंदर जो biomass होगा, that should be called as secondary productivity. प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मैं आपको क्लियर कर देता हूं. देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट, ओके. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल. क्लियर है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट. ये सब प्लांट के हैं. The amount of biomass left in plants after respiratory loss is called net primary productivity. जो टोटल फूड बना प्लांट के अंदर,
जीपीपी माइनस आर कर देंगे तो बनेगा जीपीपी माइनस आर इज कॉल्ड एनपीपी. Suppose plants are preparing some 10 kg of food. After preparing that 10 kilogram of food, plants are utilizing some part of food. So, mother of nature, plants, they are preparing food and they are taking a little part of it. So, and we are calling that little part of it as respiratory loss. GPP minus R. प्लांट्स रेस्पिरेशन करने के बाद जितना बायोमास बच जाता है प्लांट के अंदर, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इफ एट ऑल अगर नया क्वेश्चन आ जाए जैसे प्लांट्स आर हैविंग विच बायोमास विच इज अवेलेबल टू द एनिमल, विच बायोमास ऑफ प्लांट इज अवेलेबल टू द एनिमल, विच बायोमास के लिए क्वेश्चन ये, which biomass is available, which biomass of plants available to animals, available to animals. बताइए इसका क्वेश्चन कैसे करना है. Which biomass of plants are available to animals? मतलब grass है, for example, if grass is preparing 100 kg of food, whether that 100 kg is completely available to the deer or any other herbivore animal, so you will reply definitely it is not possible because पूरा का पूरा बायोमास ट्रांसफर नहीं होगा. प्लांट्स आर यूटिलाइजिंग सम बायोमास. फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास के अंदर 100 kg बायोमास है, तो डियर is having 25 kg, so that means grass are preparing food 100 kg and out of 100 kg they are preparing, out of 100 kg they are utilizing some amount of food. Plants are also doing respiration and they do oxidation of food, they synthesize ATP, उनको भी एनर्जी चाहिए. तो इसलिए क्वेश्चन है विच बायोमास ऑफ प्लांट. प्लांट के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी प्लांट के अंदर ही है. तो अब आपको चूज करना है कि विच बायोमास ऑफ प्लांट इज अवेलेबल टू एनिमल्स. तो राइट आंसर यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, क्लियर है. ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मदर के पास जो है सपोज 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है मदर के पास. तो आप जाके पॉकेट मनी पूछे मदर को, तो मदर क्या करेंगे, पूरे 1000 दे देंगे? नहीं देंगे ना. सो अगर मदर के पास 1000 है तो हो सकता है आपको 50 रुपीज मिल जाएंगे इसके, राइट. तो ये फूड है, जो बायोमास है अवेलेबल इन प्लांट, टोटल is primary productivity. Out of that, if you do respiratory loss, so the food or the biomass available from plants to animal is called net primary productivity. Best example मैं दिया यहाँ पर. Suppose mother is having 1000 rupees, then mother is giving you 50 rupees what your pocket money, that is net primary productivity. बहुत ही कम हो रहा है net primary productivity because plants have to do respiration, उनको भी एनर्जी चाहिए, इसलिए वो कुछ एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Which of the following process during decomposition is correctly described? Which is correct? Correctly described. Correctly described ढूंढना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म लिख रहा है. लास्ट स्टेप इन decomposition. This is the first option.
सेकेंड ऑप्शन है लीचिंग। लीचिंग क्या दे रहा है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कम टू टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ये एक दे रहा है, देखिए केयरफुल होके जो है पढ़ना है आपको चार ऑप्शन। फ्रैगमेंटेशन दे रहा है। फ्रैगमेंटेशन कैरीड आउट बाई अर्थवर्म। अर्थवर्म का नाम यहां पे फेरेटिमा पोस्थोमा लिखा है। फेरेटिमा पोस्थोमा। ऑप्शन 4 है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी फास्ट। एक्टिविटी इज वेरी फास्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करना है सब लोग। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कैटाबॉलिज्म बताया जा रहा है। कैटाबॉलिज्म इज लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन। रॉन्ग। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिकम्पोजिशन इज फ्रैगमेंटेशन। सेकंड स्टेप लीचिंग। थर्ड स्टेप कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड फाइनल मिनरलाइजेशन। सो कैटाबॉलिज्म इज नॉट द फाइनल स्टेप, इसलिए हटा दिए इसको। सेकंड ऑप्शन लीचिंग दे रहा है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट कम टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। दिस इज रॉन्ग। टॉप लेयर ऑफ सॉइल नहीं बोलना था। लीचिंग मीन्स बिल्कुल सही। लीचिंग मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स from the detritus, and those extracted nutrients they go down into the soil and become as unavailable precipitated salts. Unavailable precipitated salts बोलना था। यहां पर बताया जा रहा है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कम टू टॉप लेयर नहीं बताना था भाई, टॉप लेयर नहीं बताना था। दैट इज रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन कैरिड फ्रैगमेंटेशन कैरिड आउट बाय फेरेटिमा पोस्थोमा। जिन बच्चों को नहीं मालूम फेरेटिमा पोस्थोमा क्या है, इट इज अर्थवर्म, साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म, बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। ये बिल्कुल सही होने वाला है, ये रॉन्ग हो गया था, ये राइट हो जाएगा। लीचिंग में क्या रॉन्ग हुआ? टॉप लेयर नहीं आना था। लीचिंग मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हिच गो डाउन इनटू द डीप लेयर्स ऑफ सॉइल, नॉट इन टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सो सेकंड रॉन्ग, थर्ड करेक्ट हो रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट ह्यूमिफिकेशन माइक्रोबियल एक्टिविटी इज फास्ट बोलना गलत है, वेरी फास्ट नहीं बोलना था। ह्यूमिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लोस डाउन। यहां तक लिख दिया है बुक में ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये भी लिख दिया है बुक में। सो दैट्स व्हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी फास्ट बोलना बिल्कुल गलत होगा। देयरफॉर राइट आंसर इज सी ऑप्शन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, डिकम्पोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है डिकम्पोजिशन का इफ यू डू सच क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which of the following डिकम्पोजिशन कब फास्ट होने वाला है? एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन। ऑप्शंस आर लिग्निन, एरोबिक कंडीशन, कोल्ड, मॉइस्ट। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन रिच एरोबिक, वार्म, मॉइस्ट। तीसरा है शुगर रिच
anaerobic warm condition. Fourth option, nitrogen rich anaerobic warm condition. So how to do this question? सबसे पहले हम एलिमिनेशन करेंगे. Decomposition, rate of decomposition depends upon certain condition like aerobic. First of all, decomposition require aerobic condition. Oxygen is required. Warm condition is required. Moist condition is required. तो anaerobic वाले ऑप्शन हटा दीजिए, बिकॉज डिकम्पोजिशन इज स्ट्रिक्टली एरोबिक कंडीशन. ऑक्सीजन चाहिए, स्ट्रिक्टली एरोबिक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन कट. फोर्थ ऑप्शन भी हटा दीजिए, बिकॉज डिकम्पोजिशन इज नॉट anaerobic, इट इज एरोबिक प्रोसेस. इफ ए डेड बॉडी इज केप्ट इन an anaerobic place in absence of oxygen, then the detritus or dead remain as it is without undergoing any decomposition. anaerobic तो नहीं हो सकता. एक्सेलरेट चूज करना है. एक्सेलरेट मतलब फास्ट कब होगा डिकम्पोजिशन, फास्ट कब होगा. लिग्निन रहने से डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, बिकॉज लिग्निन, काइटिन, दे आर वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड्स. आप नोट कर सकते हैं, लिग्निन, काइटिन आर वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड्स. इन दैट प्रेजेंस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गेट्स स्लो. तो ए ऑप्शन भी हटा दीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पे करेक्ट वन जो है बी ऑप्शन. डिकम्पोजिशन बिकम्स फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रिच. जब नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, एरोबिक कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, डिकम्पोजिशन इज फास्टर. वार्म कंडीशन, यस, वार्म कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिकम्पोजिशन. मॉइस्ट कंडीशन भी चाहिए. मॉइस्ट कंडीशन देखिए, डिकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड वार्म कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, एरोबिक कंडीशन. and if nitrogen rich compounds are present, water soluble compounds are present, even sugar rich compounds, शुगर भी अगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी. ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. What is the shape of pyramid? What is the shape of pyramid? Shape of pyramid of biomass. Pyramid of biomass in an aquatic ecosystem. In an aquatic ecosystem. Options are inverted, upright, depends on type of food chain, depends on type of food chain. Option 4, spindle shape. चलिए करेंगे ये क्वेश्चन. एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब कोई एक पॉन्ड ले लीजिए, रिवर ले लो. इन रिवर और ए पॉन्ड, व्हाट हैपेंस इन देम, phytoplanktons are constituting very very less biomass. एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर मैं सारे phytoplanktons if I take out of the river and if I weigh them, they will become 4 kg or 5 kg, that's all. क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन तो माइक्रोस्कोपिक हैं, उनका बायोमास तो 100 kg तो नहीं जाएगा. ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी हाई इन नंबर बट वेरी लेस इन बायोमास. ये रहा फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन आर ईटन बाय zooplankton. zooplankton, फाइटोप्लैंक्टन आर ईटन बाय zooplankton एंड zooplankton का बायोमास ज्यादा होगा कंपैरेटिवली. If we compare phytoplankton, the biomass is more in zooplankton. And zooplankton से ज़्यादा बायोमास आपको मिलेगा स्मॉल फिश में, और स्मॉल फिश से ज़्यादा बायोमास मिलेगा आपको लार्ज फिश में. So
यहां मैं क्या किया, बायोमास वर्ड कैच कर लिया, बायोमास, मास लेना है आपको। एक पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग कंसिडरिंग बायोमास ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ए रिवर इज और अपराइट। व्हाट इज द शेप, कैसे दिख रहा है ये पिरामिड आपको? इन्वर्टेड दिख रहा है ना। इन्वर्टेड पिरामिड मतलब बेस इज नैरो, बेस छोटा है यहां पर, इसको इन्वर्टेड बोलना पड़ता है। राइट आंसर इज इन्वर्टेड लेना पड़ेगा आपको। होप यू फॉलोड दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम।